This message is very important for those aspirants who are appearing in interview personality test. This message I got from Sai Tejapuli, who got AIR 21 in CAPFAC 2021. So this is obviously, this message is for me. It is my personal achievement, you can say. I thought this message is having very good impact on those aspirants who are preparing for this examination. Actually, this message was sent some means I think 5 6 months back. Still, I thought I could share now. So from him, it is a message. Okay, so in next slide, I have the full message. So I am showing the next slide. Okay, so this is, for example, he has written. Okay, so he has written, sir, the interview marks 105. Though in 2021 or any time, for example, 100 plus marks in personality test interview is very good. So, sir, the interview marks 105, rank 21, and force allocation CRPF as my first choice. So his first choice was CRPF, are truly because your support and guidance. When I was looking for interview guidance, where in the market there was only for one mock interview, but when I reached you, sir, I believe it's my destiny that I found you. You were offering 5 mocks, and I was puzzled why 5 mocks with one, sir. Okay. Then I gave one mock and another with you. But I realized the spectrum of questions you were asking and making me to think beyond regular mock interview sessions. First mock was about yourself and DAF related. Second mock was current affairs and bit DAF. Third mock current affairs. Then I sat down, wrote all your questions down and made my answers ready. When I got struck, I reached you, sir, asking typical questions. What should I answer for? Why CRPF? Why CAPF? And what's more in CRPF that I can tell to the panel? I almost got 10 to 12 questions that which I prepared from your interview mocks. I was confident enough by those questions and answered as you guided me. Thank you so much, sir. In this chaotic world of despair and loss of confidence, you are light of hope, which guided me amidst all the postponement of exams and everything. Uh, I will be truly indebted for your support and guidance, sir. Thank you so much for making me what I am today. See, it is my personal achievement. I know, but here nothing is as such personal key I should not share. Whatever is in truly personal in nature, I'm not sharing generally. That's the reason I'm not sharing complete DAF of any candidate on public platform. If on personal level, something I am discussing to those aspirants who are preparing for interview guidance, those who are attached with me at personal level, those who are having repo with me, I am sharing certain things. DAF, obviously, some candidates are asking, sir, my DAF is having some important information, so please protect this and don't share with anyone. I say, yes, I'm not doing anything which is not to be shareable. तो जो भी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसी चीजें होती है, हम मान के चलो मैं डीएफ कुछ लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो पैनल में हमारे साथ इंटरव्यू में है। मॉक इंटरव्यू में जो पैनल में साथ में है उन्हें तो देना पड़ेगा ही, उनको बताना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखो कि लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे इनके मैंने मैसेज को इस वजह से कि एक अच्छा मैसेज इन्होंने भेजा, और जिसको कि आप कैंडिडेट्स जो भी हो, जिनको लगता है कि यस हमें इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, इसको आप एक बार देखो। एक्चुअल में देखो, मैं 5 मॉक्स आपको देता हूँ, और 5 मॉक्स में मैं 3 1 2 1 करता हूँ, और मैं ऑल 5 में मैं आपके साथ होता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को, अब जस्ट इमेजिन करो 1 मॉक आपको दिया जाए। 1 मॉक में जो है बहुत सारे डायमेंशन आपके कवर नहीं किए जा सकते हैं। आप रियल इंटरव्यू में भी क्या होता है, आप हर डायमेंशन कवर कर सकते हो या बोर्ड कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 5 जब मैं करता हूँ, और मैं एटलीस्ट आप में सब में रहता हूँ, ऑल 5 में मैं आपको मिलता हूँ, तो मैं आपके हर पर्सन को, इंडिविजुअल को जानता हूँ। इंटरव्यू गाइडेंस जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट इज मोर अबाउट पर्सनल अटेंशन
इट इज मोर अबाउट पर्सनल गाइडेंस। अधिक से अधिक मैं पर्सनल लेवल पे जुड़ना चाहता हूँ। हर कैंडिडेट अलग अलग है। ए लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं 85 प्राप्त करते हैं, और बहुत बार एवरेज कैंडिडेट हैं 105 110। तो ये मत सोचो कि हमारे डीएफ में एक्सीलेंट लिखा हुआ है, मैं बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह से हुई, वो मायने नहीं रखता। हर कैंडिडेट अलग अलग है, हर कैंडिडेट इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो आप अपने बारे में सोचो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट कि हम हर वो चीज क्लास में डिस्कस करें, नहीं। मैं इंडिविजुअल लेवल पे हर कैंडिडेट से पूछता हूँ, आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट्स है, उन प्रॉब्लम्स, डाउट्स, क्वेश्चंस को ये आप बताओगे कि हाँ मेरे सर ये क्वेश्चन है, मेरे ये अप्रोच है, मैं किस ढंग से करूँ। लॉट ऑफ टाइम होता है मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि यस, आप पहले अपना आंसर फाइंड करो, आप देखो, आप उस चीज के संबंध में सोचो, आप पहले अपना आंसर, ये रेडीमेड नहीं है। लॉट ऑफ टाइम क्या होता कि वहां जब जाते हो तो रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जितना आप प्रैक्टिस किए हुए रहते हो, जितना आप डिस्कशन करते हो, जितना आप चीजों को एक्सप्रेस करते हो, उतना आपके लिए कंफर्ट होता है, उतना आप कंफर्टेबल फील करते हो। So this was a beautiful message I received. So I thought I should share with you people, those who are preparing for this examination for interview. और इनका देखो ये मार्क्स, ये है CAPF AC 2021। इनका देखो पेपर 1 में अच्छा। अब जब आप 21st रैंक ला रहे हो तो ऑब्वियसली आपका अच्छा होगा ही। पेपर 2 में भी इनका 105 था, और पर्सनालिटी टेस्ट में भी उनका 105 था। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, और फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ, और इन्होंने फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ रखा था तो सीआरपीएफ मिला। ये जो कि आपने मैसेज में देखा। जो भी प्रिपरेशन के संबंध में किसी कैंडिडेट्स को कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्यूरी रहता है तो आप मैसेज करो। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो कि जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी का जवाब देता हूँ तो मैं हर चीज के लिए आपको नहीं कहता हूँ कि पेड प्रोग्राम ज्वाइन करो। लेकिन पेड प्रोग्राम में जो है मैं आपको प्रॉपर तरीके से पर्सनल लेवल पे जितना हो सकता है करने की कोशिश करता हूँ। तो इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। कुछ एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि हर कोई पेड में ही होते हैं, बहुत सारे नॉन पेड वाले भी होते हैं। तो जितना मेरे से हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे, चीजें चलती रही स्मूथली, तो इस वजह से सबको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत होती है। ये आप इसको अपना ऑर्गेनाइजेशन मानो, इसको ये मानो कि हाँ हम सर से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए भी एडवांटेज है और सर के लिए भी एडवांटेज। मैं खुद ही लर्न कर रहा हूँ। मैं खुद आप लोगों के इस जर्नी में, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से, आप लोग के डीएएफ से, आप लोग के अचीवमेंट से लर्न करता रहता हूँ। और ये जर्नी आपकी चलती रहेगी। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स है तो आप मैसेज करना। ओके, थैंक यू।